بھائی گھڑی ساز تھا، جس کی بھی گھڑی ٹھیک کرتا اس کی موت ہو جاتی۔ ان کی بیویاں روتی پیٹتی بھائی کے پاس آتی تو ان سے نکاح کر کے گھر لے آتا۔ یوں کرتے کرتے 11 دلہنیں گھر لے آیا۔ ایک روز میں نے بھائی کی گھڑی چرائی اور نقاب کر کے ٹھیک کروانے چل پڑی۔ اس رات جو قیامت ٹوٹی۔ بھائی، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے آپ نے؟ خدا کا خوف نہیں کیا آپ کو؟ اسلام نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے اور آپ نے 11 شادیاں کر لی۔ میں بھائی کو دیکھتے ہی چلائی تھی۔ میرا بھائی 11 شادیاں کر چکا تھا۔ میں خود شادی شدہ تھی اور اپنے شوہر کو دوسری شادی کی اجازت ہرگز نہ دیتی، پر بھائی نے تو اکٹھی 11 شادیاں کر لی تھی۔ میرا تو دماغ گھوم چکا تھا۔ تم اپنے کام سے کام رکھو، میری زندگی میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی؟ بھائی غصے سے جواب دیتا چلا گیا، جبکہ میں اپنا سر تھام کر بیٹھ گئی۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میرا بھائی تو ایسا ہرگز نہیں تھا کہ اتنی شادیاں کرتا۔ وہ تو ایک لڑکی پر زندگی لٹا دینے والا تھا، پھر 11 شادیاں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، دماغ الجھتا ہی جا رہا تھا۔ بھائی اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ وہ تو ہر وقت ہنستا بولتا رہتا تھا، جبکہ یہ بھائی تو گمسم رہتا تھا، ہر وقت اپنے کام میں مصروف، نہ کسی سے بات کرتا نہ کسی کی بات سنتا۔ میں تو جب سے ملک واپس آئی پریشان ہی تھی۔ پہلے بھائی کے رویے نے پریشان کر رکھا تھا اور اب اس کی 11 شادیوں نے۔ مجھے حیرت ہوتی تھی ان لڑکیوں پر جو بھائی سے یہ جانتے ہوئے بھی شادی کر لیتی تھی کہ یہ شخص پہلے سے شادی شدہ ہے۔ ہم اپنے بھائی سے بہت پیار کرتی تھی کیونکہ بھائی نے ہی ہمیں پالا تھا۔ ہمارے ماں باپ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ اس کے بعد بھائی ہی تھا جس نے مجھے ماں کی طرح پالا۔ حالانکہ وہ مجھ سے عمر میں صرف 5 سال بڑا تھا، لیکن میرا ایسے خیال رکھتا جیسے مائیں اپنے بچوں کا رکھتی ہیں۔ ہم نے بچپن میں بڑی مشکل زندگی گزاری تھی، کبھی کبھی کھانے کو روٹی نہیں ملتی تھی۔ میرے بھائی نے بچپن سے ہی محنت مزدوری شروع کر دی تھی۔ وہ خود پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن اس نے مجھے اچھی تعلیم دلوائی تھی۔ وہ اکثر کھانا نہیں کھاتا تھا، لیکن مجھے پیٹ بھر کر کھلاتا تھا۔ خود پھٹے پرانے کپڑے پہنتا، لیکن مجھے اسکول کی ساری چیزیں لا کر دیتا۔ سردیوں میں اس کے جوتے ٹوٹے ہوئے ہوتے پر مجھے نئے جوتے دلاتا تھا۔ وہ دن بھر محنت مزدوری کرتا اور پھر رات کو مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا اور ہمیشہ کہتا تھا کہ گڑیا، تم بس اپنی پڑھائی پر دھیان دو، اچھے سے پڑھو اور ایک بڑی انسان بن جاؤ۔ بھائی چاہتا تھا میں ڈاکٹر بن جاؤں۔ اس کے لیے میں نے دن رات محنت کی اور میں بالآخر ڈاکٹر بن گئی۔ بھائی نے تب تک اپنی ورک شاپس بنا لی تھی، گزارا اچھا ہوتا تھا۔ بھائی کو ایک لڑکی پسند آئی تھی، لیکن وہ پہلے میری شادی کرنا چاہتا تھا۔ میرے کلاس فیلو کا میرے لیے رشتہ آیا، وہ مجھے پسند کرتا تھا، لڑکا اچھا تھا۔ بھائی نے رشتہ قبول کر لیا، مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ منگنی کے 1 مہینے کے بعد میرا نکاح ہو گیا اور پھر میں اسپیشلائزیشن کے لیے باہر چلی گئی۔ بھائی سے میری روز بات ہو جاتی، لیکن پھر آہستہ آہستہ مصروفیات بڑھتی چلی گئیں۔ ایک دن بھائی نے مجھے بتایا کہ اس نے گھڑیوں کا کاروبار شروع کیا ہے۔ بھائی گھڑی ساز بن گیا تھا۔ اب بھائی مزید مصروف ہو گیا۔ پہلے روز بات ہوتی، پھر ہفتے بات ہونے لگی اور اب مہینے میں 1 آدھ بار ہوتی تھی۔ میں دل لگا کر پڑھتی تھی۔ مجھے واپس جا کر غریب لوگوں کے لیے اسپتال بنانا تھا، پر جب میں واپس لوٹی تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ بھائی بہت سنجیدہ ہو گیا تھا۔ وہ زیادہ ٹائم گھر سے غائب رہتا اور ہفتوں ہفتوں بعد گھر آتا۔ میں بھی اپنے کام میں اتنی مصروف ہو گئی کہ غور ہی نہ کر پائی۔ اچانک بھائی ایک لڑکی کو لے آیا اور کہا کہ یہ میری بیوی ہے۔ میں تو شاک رہ گئی۔ میں نے کبھی خواب میں بھی ایسا نہیں سوچا تھا۔ میں نے تو اپنے اکلوتے بھائی کی شادی کے بڑے خواب دیکھے ہوئے تھے، اور پھر بھائی نے تو کہا تھا کہ پہلے میری شادی کرے گا، بعد میں اپنی۔ پھر یہ سب کیا؟ اور سب سے اہم بات، بھائی تو کسی لڑکی سے محبت کرتا تھا۔ کہاں گئی تھی وہ لڑکی؟ بھائی تو بے وفائی کرنے والوں میں سے تھا ہی نہیں۔ مجھے تو بلکہ اس لڑکی پر رشک ہوتا تھا جس نے بھائی سے محبت کی تھی۔ کتنی خوش نصیب تھی وہ لڑکی جس کے لیے میرے بھائی نے خود کو سنبھال رکھا تھا۔ پھر اچانک شادی؟ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ میں کتنی ہی دیر بے یقینی سے بھائی کی شکل دیکھتی رہی۔ پھر بھائی نے اس لڑکی کو اپنا کمرہ دکھایا جو بھائی کی بیوی تھی اور میری بھابھی تھی۔ اب اس سے پہلے میں بھائی سے کچھ پوچھتی، بھائی تیزی سے باہر چلا گیا۔ میں بہت پریشان تھی اور تجسس کے ہاتھوں مجبور بھی۔ میں تیزی سے بھائی کے کمرے میں گئی۔ وہ لڑکی بیڈ پر ایک جانب بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ سب اچانک کیسے ہوا؟ تم نے میرے بھائی سے اتنی جلدی شادی کیوں کی؟ وہ لڑکی رونے لگی اور اس نے بتایا کہ میرے شوہر کا چند ماہ پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سے مجھے عجیب سی دھمکیاں ملنا شروع ہو گئیں۔
वो जो भी था कहता था तुम्हें जल्द मार दूंगा। मजबूरन मुझे तुम्हारे भाई से शादी करनी पड़ी। लेकिन तुम मेरे भाई को कैसे जानती हो? मैंने जल्दी से पूछा। वो दरअसल एक बार मैं अपने शौहर की घड़ी ठीक कराने आई थी। फिर आज सुबह जब मैं अपनी घड़ी ठीक कराने आई तो मैंने उन्हें सब बता दिया और यूं तुम्हारे भाई ने मुझसे निकाह कर लिया। मैंने गहरा सांस लिया और इतनी तसल्ली हो गई थी कि भाई ने इस लड़की की मदद करने के लिए इससे शादी की थी। पर जब लड़की से भाई मोहब्बत करता था वो कहाँ गई? और क्या अब वो भाई से शादी करने वाली थी या नहीं? सारी रात मैं यही सोचती रही। भाई भी घर नहीं आया, नंबर भी बन जा रहा था। अगले दिन मैं अस्पताल चली गई और मुलाजमा से कहा कि वो उस लड़की का ख्याल रखे जो अब मेरी भाभी थी। मेरा दिन मसरूफ गुजरा। रात को वापस आई तो भाई फिर गायब था। 3 दिन बाद भाई वापस आया और ये देखकर मैं हैरान रह गई। भाई के साथ एक और अनजान लड़की थी। ये कौन है भाई? मैंने हैरत से पूछा। ये मेरी बीवी है। भाई ने नया झटका दिया। वो लड़की डरी सहमी सी एक जानिब खड़ी थी और मैं हैरत से फटी आंखें लिए उन्हें देख रही थी। भाई की पहली बीवी भी ऐसे ही हैरान खड़ी थी। भाई उस लड़की को भी घर छोड़कर चला गया। मैं तो गुस्से से पागल हो रही थी। ये भाई को क्या हो गया था? हमारा घर कोई दारुल अमान था जो वो हर किसी को उठाकर लेकर आ रहा था। मेरा शौहर भी फोन नहीं उठा रहा था जिससे मेरा निकाह हो चुका था, लेकिन रुखसती होने वाली थी। पर भाई ने नया ड्रामा शुरू कर दिया। रात के 2 बजे के करीब मेरे शौहर ने फोन उठाया तो मैंने उसे सारी बात बताई। वो खामोशी से सुनता रहा। जाने उस लड़की पर क्या गुजर रही होगी जिससे भाई ने मोहब्बत के दावे किए थे। मैंने अफसोस से कहा। तभी मेरा शौहर फौरन बोला कि वो लड़की मर चुकी है। उसकी बात सुनकर मुझे झटका लगा। मुझसे कुछ बोला ही नहीं गया। मर गई? लेकिन कैसे? मैंने हैरत और गम के मिले जुले तासुरात से पूछा। ये तुम अपने भाई से पूछ लेना, उसने बेजारी से कहा और फोन बंद कर दिया। मैं इतनी हैरान थी कि अपने शौहर का बदला रवैया भी नहीं समझ पाई, न महसूस कर पाई। मुझ पर तो एक के बाद दीगरे हैरतों के पहाड़ टूट रहे थे। भाई तो जैसे घर का रास्ता ही भूल गया था। भाई 10 बजे के बाद वापस घर आया और भाई के साथ 3 लड़कियां और थीं जिन्हें भाई अपनी बीवी कह रहा था। मैं तो मारे सदमे के बेहोश हो गई। जब होश आया तो भाई गायब था। सारी लड़कियों की एक ही कहानी थी। सबको डराया धमकाया गया। सबके शौहर फौत हो चुके थे। मैं इतनी परेशान थी कि अस्पताल भी न जा सकी और उसी रात मुझे मेरे शौहर का फोन आया। वो गुस्से में था। उसने कहा कि अपने भाई को समझा लो, वो गलत कर रहा है। घड़ियों की आड़ में वो जो गुल खिला रहा है उसे ले डूबेगा। क्या मतलब? किस बारे में बात कर रहे हो तुम? मैंने हकलाते हुए पूछा था। अपने भाई को बताओ बाज आ जाए, वरना किसी के भी हक में बेहतर नहीं होगा। और ऐसा ही हुआ था। 2 दिन बाद भाई की पूरी 11 शादियां हो चुकी थी और वो 11 दुल्हनें हमारे घर में मौजूद थी। मैं तो भाई से लड़ पड़ी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उन लड़कियों को उठाकर घर से बाहर फेंक दूं, क्योंकि अभी मुझे मेरे शौहर का फोन आया था जिसने मुझसे साफ साफ कहा था कि वो मुझे तलाक देना चाहता है। ये सब भाई की वजह से हुआ था। भाई ने खुद को और मुझे पूरे जमाने में रुस्वा कर दिया। भाई ने साफ साफ बोल दिया था कि तुम अपने काम से काम रखो और फिर घर से चला गया, जबकि मैं बैठी रह गई। कुछ तो था जो ठीक नहीं था। भाई यकीनन कुछ छुपा रहा था। मुझे लग रहा था जैसे कुछ बहुत बुरा हुआ था और कुछ बुरा होने जा रहा था। मैं सारी रात रोती रही। एक तो भाई ने परेशान कर दिया और ऊपर से मेरा शौहर, जिसने सारी उम्र साथ निभाने का वादा किया था, वो इस मुश्किल वक्त में मुझे छोड़ना चाहता था। मैं हैरान थी बल्कि परेशान थी कि वो तो मुझसे मोहब्बत करता था, मुझे तलाक कैसे दे सकता है। सारी रात इसी कश्मकश में गुजर गई। सुबह हुई तो मैंने एक प्लान बनाया। मैंने भाई के कमरे से उसकी एक घड़ी उठाई और बुर्का पहनकर नकाब करके भाई की दुकान पर पहुंच गई। वो छोटी सी दुकान नहीं बल्कि बड़ा सा शोरूम बना हुआ था। हर तरफ चमकती और कीमती घड़ियां थी। मैंने एक लड़के से भाई का पूछा। उसने सर से पांव तक मुझे देखा और एक जानिब इशारा कर दिया। मैं कमरे की जानिब बढ़ गई। मेरा दिल धक धक कर रहा था। कमरे का दरवाजा खोलकर मैं अंदर दाखिल हुई। कमरा खाली था। बड़ी सी मेज के पीछे रखी कुर्सी पर कोई भी नहीं बैठा था। मेरी नजर दीवार पर लगी एक तस्वीर पर पड़ी। ये उस लड़की की तस्वीर थी जिससे भाई मोहब्बत करता था और शादी करने वाला था, लेकिन फिर वो मर गई। मुझे भाई की तकलीफ का एहसास था। मेरी आंखों में पानी आ गया। मैंने तस्वीर को हाथ से छुआ और मुझे हैरत का झटका लगा जब तस्वीर को छूने से एक दरवाजा खुल गया। मैं धड़कते दिल के साथ अंदर दाखिल हुई। अंदर एक तय खाना था
सीढ़ियां नीचे की जानिब जा रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगी। खौफ से मेरा दिल बाहर निकलने को तैयार था। जहां सीढ़ियां खत्म हुई वहां एक बड़ा सा हॉल था और सामने का मंजर देखकर मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। सामने ही एक लड़की कुर्सी पर बैठी थी। सामने भाई बैठा था और भाई के चारों जानिब 11 लोग उल्टे लटक रहे थे। उनके जिस्मों पर बेतहाशा जख्म थे। आज तुम लोगों का आखिरी दिन है। जैसे तुम लोगों ने मेरी सना को तकलीफ देकर मारा था, वैसे ही तुम लोगों को भी मारूंगा। और देखो, तुम सबकी बीवियां मेरे कब्जे में हैं। भाई ये बोलते कहका लगाकर हंसा। मुझे भाई की ज़हनी हालत पर शक हुआ। मैं लड़खड़ा गई और साथ रखे लकड़ी के शेल्फ से टकरा गई। शेल्फ नीचे गिरा, आवाज उभरी और भाई ने डर कर पीछे देखा। मैंने अपने मुंह से नकाब उतार दिया। भाई हैरत से मुझे देख रहा था और मैं बेयकीनी से भाई को। तुम यहां क्या कर रही हो? जा यहां से, भाई गुस्से से चिल्लाया। और भाई, आप ये सब क्या कर रहे हैं? आप तो ऐसे नहीं थे। आपने मासूम लोगों को क्यों कैद किया हुआ है? मैं भी गुस्से से चीखी। ये लोग मासूम नहीं हैं, इन्होंने मेरी सना की जान ली है। भाई अपनी मोहब्बत का बता के रो पड़े। हुआ कुछ यूं था कि एक रोज भाई सना को लेकर एक बड़ी सी घड़ियों की दुकान में गए। वहां पर उस वक्त कुल मिलाकर 11 लोग थे। सब ने सना को बुरी नजरों से देखा। फिर प्लान बनाकर उन्होंने सना भाभी को अगवा कर लिया, उसके साथ बहुत बुरा किया और फिर उसे मार डाला। वो उसे सड़क पर फेंक कर चले गए। सना ने मरने से पहले भाई को सब बता दिया। मैं मुल्क से बाहर थी जब ये वाक़या पेश आया। फिर भाई ने प्लानिंग की। भाई ने पहले उन लोगों से वो घड़ियों का शोरूम खरीदा, उनका बिजनेस तबाह कर दिया और फिर सबको बारी बारी अगवा कर लिया। जाने कितने महीनों से भाई ने इन सबको यहाँ कैद रखा हुआ था। भाई ने मरने नहीं दे रहा था, अलबत्ता तकलीफ जरूर दे रहा था। भाई ने सना की ज्यादती का बदला लेने के लिए उन सब की बीवियों से शादी कर ली। सना की मौत के बाद भाई का दिमागी तवाज़ुन हिल गया था। मुझे दिली अफसोस हुआ था, पर मैं अपने भाई को मुजरिम बनते नहीं देख सकती थी। मुझे अपनी सना का बदला लेना है। आज इन सब की आखिरी रात है। मैं सबको मार डालूंगा आज। भाई हिज़यानी अंदाज में चिल्लाया। और अगर आपने ऐसा किया तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। मैंने फौरन हाथ में पकड़ी वो शीशी भाई को दिखाई, जो मुझे उनके कमरे से मिली थी। यकीनन इन सबको मारकर भाई खुद ये खाकर खुदकुशी करने वाले थे। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। भाई तेजी से मेरी जाने बढ़ा, पर इससे पहले ही मैंने उस शीशी को मुंह से लगा लिया। मौत की तकलीफ क्या होती है मैं महसूस कर सकती हूँ, पर मैं बच गई और जब उठी तो सब ठीक हो चुका था। भाई ने पुलिस को बयान दे दिया था। भाई को 1 साल की सजा हुई थी, जबकि बाकी 11 को उम्र भर कैद। और मेरा शौहर वो रो पड़ा था। उसने रो रो कर मुझसे माफी मांगी। मैंने अल्लाह से अपनी इस हरकत की पहले तो माफी मांगी और फिर शुक्र अदा किया कि मेरा भाई कातिल बनने से बच गया था। मैं जानती थी आने वाला कल बेहतर होने वाला था।